Hello everyone, I'm Akanksha Sharma and I welcome you back to the channel English Only Zone. See, through this channel I try to help you in understanding the concepts related to English in an easy and clear manner. So here I am again with yet another topic which is of your choice. Yes, most of you requested me to upload a video on tenses. So keeping your request in mind, today I am uploading a short video on tenses. This video is not so lengthy as other ones, so you can take it as revision also. But here is an advice. Watch full video till the end to understand better. And one more thing, I've also included Hindi in this video, so you can understand easily. So let's get started. See, in English language, we basically have three main tenses, and those are present tense, past tense and future tense. And these three main tenses are further subdivided into four tenses, and these are simple, continuous, perfect and perfect continuous. So in this video, we will be only covering simple and continuous tense. We will be covering simple present, simple past and simple future, and then present continuous, past continuous and future continuous. The remaining tenses we will be covering in another video. So let's start with simple present tense. Simple present tense is also known as present indefinite tense. So what is the rule of simple present tense? Subject plus verbs first form and then object. Let's study the examples. We will understand better with the help of examples. I eat guava. She eats guava and they eat guava. If I translate the first sentence into Hindi, what will I say? मैं अमरूद खाती हूँ. तो लास्ट में क्या आ रहा है? खाती हूँ. हूँ से क्या पता चल रहा है? That it is in present tense. Okay? और हूँ से पहले क्या आ रहा है? खाती. तो लास्ट में ती और हूँ आ रहा है. तो ऐसे सेंटेंसेस, हिंदी के ऐसे सेंटेंसेस जिनके एंड में ता है, ती है, ते है या फिर गई, गया, गए ऐसे वर्ड्स आते हैं, उनको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखते हैं. ओके? तो आई ईट गुआवा, मैं अमरूद खाती हूं, इसको हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखा है. और इसके लिए हमने रूल क्या लगाया? सब्जेक्ट, देन वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट. आई हैज बिकम द सब्जेक्ट हियर. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हुई? ईट. ईट वर्ब है, उसकी फर्स्ट फॉर्म ईट ही रहेगी. एंड देन ऑब्जेक्ट, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट हियर? गुआवा. सिमिलरली इन सेकेंड सेंटेंस, शी ईट्स गुआवा, वह अमरूद खाती है. तो लास्ट में क्या आ रहा है? खाती है. ती है आ रहा है ना, तो इट इज ऑल्सो इन सिंपल प्रेजेंट टेंस. बट यू मस्ट बी वंडरिंग व्हाई आई हैव रिटन ईट इन द फर्स्ट सेंटेंस, ईट्स इन द सेकेंड वन and again eat in the third one. So there is a rule for this. I के साथ eat लगेगा, she के साथ eats and they के साथ again eat. अब ऐसा क्यों है? Let's study. See, if we have words such as we, you, they, I and more than one name as subject, तो हम उसके साथ verb की first form लगाएंगे without using s और es. एस और ई एस के बिना ही हम सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब लगाएंगे उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी. फॉर एग्जाम्पल, आई विल से वी लाइक. आई विल नॉट से वी लाइक्स और आई लाइक्स. वी विल से आई लाइक, वी लाइक, यू लाइक, दे टेक एंड राम एंड श्याम गिव. ओके, these are the this is the rule for the plural subjects. And if we write singular subjects, then what we have to write? Which type of verb we will write? The subject such as he, she, it, or only one name will take verbs first form along with s or es as per the requirements. We will say he likes, she takes, it gives, Ram sleeps. Okay? हम वी के साथ एस और ई एस वाली वर्ब नहीं लगा सकते. इसी तरह ही, शी, इट और किसी एक नेम के साथ हम विदाउट एस और ई एस वर्ब नहीं लगा सकते. इट विल बिकम रॉन्ग. सो आई होप इट इज क्लियर टू यू कि हमने आई के साथ ईट क्यों लिखा एंड शी के साथ
ईट्स क्यों लिखा? बिकॉज शी इज सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ वर्ब की एस और ई एस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस आता है। आई को हम प्लूरल कंसिडर करते हैं, दे भी प्लूरल है, इसके लिए इसी वजह से इसके साथ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ई और एस और ई एस नहीं लगाया। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ यूसेज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। वेयर डू वी यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस? वी यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉर सम हैबिट्स। जो हमारी हैबिट्स होती है उनको बताने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से आई ड्रिंक टी, मैं चाय पीती हूं, ये मेरी हैबिट है, ठीक है, इट्स माई हैबिट दैट आई ड्रिंक टी। तो अपनी इस हैबिट को बताने के लिए मैंने क्या यूज करा? सब्जेक्ट, वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म एंड देन द ऑब्जेक्ट। आई ड्रिंक ड्रिंक is the first form of the verb and then the object, that is tea. Similarly, my another habit is I sleep in the afternoon. मैं दोपहर को सोती हूँ। लास्ट में क्या आ रहा है? सेंटेंस के लास्ट में ती हूं, तो अगेन सिंपल प्रेजेंट टेंस का हुआ। इसके लिए सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा, देन वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। आई स्लीप, स्लीप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई विदाउट एस और ई एस, क्योंकि आई के साथ हम एस और ई एस नहीं लगाते हैं, एंड देन द ऑब्जेक्ट। वी ऑल्सो यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस टू टेल द जनरल ट्रुथ। जो जनरल ट्रुथ होते हैं या यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं, जो बात कभी भी गलत नहीं होती, उसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। अब फर्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। मून रिवॉल्व्स राउंड द सन, अर्थ, मून रिवॉल्व्स राउंड द अर्थ। अब मून क्या है? एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस आएगा, तो मून रिवॉल्व्स एंड देन द ऑब्जेक्ट दैट इज राउंड द अर्थ। नाउ द सेकेंड सेंटेंस, वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब वाटर को भी हम सिंगुलर कंसिडर करेंगे, वी डू नॉट टेक वाटर एज प्लूरल। तो वाटर सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। अब क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो उसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस एड हो जाएगा। सो वाटर फ्रीजेस एंड देन द ऑब्जेक्ट एट 0 डिग्री सेल्सियस। अंडरस्टूड? अब हम अगर किसी को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, टू गिव इंस्ट्रक्शंस ऑल्सो वी यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस। नाउ कीप वन थिंग इन माइंड, wherever we give instructions to someone, we use verb before the subject. जैसे अगर हम किसी से कहते हैं यह काम करो, तो हम इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? Do this work. तो सबसे पहले क्या आया? verb आई, do. Do is verb. तो इसी तरह यहाँ पर हमने verb भी पहले लगाई है, pour water in the pan. तो what is the verb here? pour. हमने pour पहले लिखा and water is again singular, तो उसके साथ हम इसमें यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस ही लगाएंगे। एड 2 टेबलस्पून शुगर, यहां पर भी हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस ही लगाई है। नाउ व्हेन वी यूज रिपीटेड एक्शंस टू टेल अबाउट सम रिपीटेड एक्शंस, जो काम हम बार बार करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई कैच बस एवरी मॉर्निंग, ये मैं रोज करती हूँ। आई कैच बस एवरी मॉर्निंग, मुझे रोज सुबह बस पकड़नी होती है। तो सब्जेक्ट के साथ यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी एंड देन द ऑब्जेक्ट। सिमिलरली इन द सेकंड वन, राहुल अराइव्स लेट एवरी डे, ये उसका रिपीटेड एक्शन है, वो बार बार लेट ही आता है। तो राहुल, ये क्या हुआ? हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड अलोंग विद इट वी ऑल्सो राइट एस और ई एस। सो राहुल अराइव्स एंड देन द ऑब्जेक्ट लेट एवरी डे। नाउ इफ वी यूज विथ फ्यूचर टेंस, अब जहां पर हमें फ्यूचर टेंस के साथ कोई दूसरी टेंस यूज करनी होती है, वहां पर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई विल रीच बिफोर शी लीव्स, जब हमें कहीं टाइम क्लॉज के साथ फ्यूचर टेंस के साथ दूसरी टेंस यूज करनी होती है, तो हम उसके लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। आई विल रीच बिफोर शी लीव्स, उसके निकलने से पहले मैं पहुंच जाऊंगी। वी विल कट द केक वेन ही रीचेस, जब वो आएगा हम केक कट करेंगे। तो यहाँ पर भी टाइम क्लॉज हो गया, जब और तब। इसी तरह जहां पर हम टाइम क्लॉज यूज करते हैं और एक तरफ हमने फ्यूचर टेंस यूज करी है, तो दूसरी तरफ हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे। अब एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस हम उन कामों के लिए यूज करते हैं
जो काम पहले होंगे, ठीक है। नाउ सिंपल पास्ट टेंस, लेट्स स्टडी द रूल ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। सब्जेक्ट प्लस वर्ब्स सेकेंड फॉर्म एंड देन द ऑब्जेक्ट। वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है सिंपल पास्ट टेंस में। लेट्स स्टडी द एग्जाम्पल्स एंड अंडरस्टैंड इट बेटर विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। आई वेंट टू अ पार्क, मैं पार्क गई। दे गेव मी अ चॉकलेट, उन्होंने मुझे चॉकलेट दी। दे स्मोक्ड इन द ट्रेन, उन्होंने ट्रेन में स्मोक करा। तो यहाँ पर एंड में गई और दी या फिर करा, किया, ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं, तो इनको हम सिंपल पास्ट टेंस में रखेंगे। अब इनका हम यूज देख लेते हैं कि हम कहाँ यूज करते हैं सिंपल पास्ट टेंस को। द फर्स्ट इज फॉर एक्शंस कंप्लीटेड इन द पास्ट। कुछ ऐसे काम जो हमने पास्ट में कंप्लीट कर लिए हैं। द एक्शंस विच वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड बैक। आई एट एन आइसक्रीम, मैंने आइसक्रीम खाई। माई सिस्टर बॉट अ पियानो फॉर हर म्यूजिक क्लास, मेरी सिस्टर ने अपनी म्यूजिक क्लास के लिए पियानो खरीदा। फॉर नाउ द अनदर यूजेज इज हैबिट्स इन द पास्ट। पास्ट की जो हैबिट्स होती हैं जो अब हम छोड़ चुके हैं, उनके लिए भी हम सिंपल पास्ट टेंस यूज करते हैं। द फर्स्ट वन इज आई कैरीड अ टेडी टू माई बेड। बहुत सारे बच्चों में हैबिट होती है अपने टॉयज लेकर वो अपने साथ सोते हैं। सो द एग्जाम्पल इज आई कैरीड अ टेडी टू माई बेड। यहाँ पर ये मेरी पहले की हैबिट थी, बट इट इज नॉट इन माई हैबिट नाउ। तो जो हैबिट्स मेरी पहले थी और अब मैंने उन हैबिट्स को चेंज कर लिया है, उनके लिए भी हम सिंपल पास्ट टेंस यूज करेंगे। He got tremendous attitude. पहले उसके अंदर बहुत एटीट्यूड था, बट नाउ ही हैज चेंज्ड हिमसेल्फ। तो ऐसे काम जो हमारे पहले की हैबिट थे, अब उनके साथ हम क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट, देन सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन द ऑब्जेक्ट। अब आपको यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है, आपको वर्ब्स की फॉर्म्स पता होनी चाहिए। यू शुड नो व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब। वर्ब की सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फिर आईएनजी फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मेक मिस्टेक इन राइटिंग द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, और उससे पूरे सेंटेंस का मीनिंग ही चेंज हो जाता है। नाउ अनदर यूसेज इज फॉर पास्ट फैक्ट्स। जो फैक्ट्स पहले सही थे लेकिन अब सही नहीं है। ही डिडंट लाइक ऑरेंजेस बिफोर। उसे पहले ऑरेंजेस पसंद नहीं थे लेकिन अब पसंद है। He paid much more attention to other subjects than English. This is the thing which most of the students do. English से ज्यादा वो बाकी subjects को attention दे देते हैं। I don't say कि दूसरे subjects को attention मत दो, but do not take English language for granted, because this is the only subject which never helps you in gaining marks if you do not pay attention to it. So the sentence is, let's come back to the point. He paid much more attention to other subjects than English. English से ज्यादा उसने दूसरे subjects को attention दी। तो यहाँ पर subject ही आ गया, then verb की second form, pay की second form क्या हुई? Paid. Paid आ गई second form, and then the subject, the object. Now with when clauses. When I dropped my pen, देखो अब यहाँ पर past tense है। When I dropped my pen, everyone was startled. जब मैंने पेन गिराया तो हर कोई स्टार्टल्ड हो गया। द नेक्स्ट इज एवरीवन वाज स्टडीइंग व्हेन आई ड्रॉप्ड माय पेन। हर कोई पढ़ रहा था जब मैंने पेन गिराया। तो व्हेन क्लॉजेस के साथ भी हम सिंपल पास्ट टेंस यूज करते हैं। नेक्स्ट अनदर टेंस इज सिंपल फ्यूचर टेंस। सो टिल नाउ वी हैव कवर्ड सिंपल प्रेजेंट टेंस, that is present indefinite, simple past tense, that is past indefinite, and now we are on simple future tense, and that is future indefinite tense. So what is the rule of simple future tense? Subject plus will or shall plus verb's first form and then the object. So let's see the example. All the members of the society will join the meeting. So what is the subject here? All the members of the society. And what is the
main thing which we put in simple future tense, that is will, shall, the helping verb. And then the verbs first form, and then in the end object. सोसाइटी के सारे मेंबर्स मीटिंग ज्वाइन करेंगे. लास्ट में क्या आया? करेंगे. द सेकेंड इज आई शैल वर्क हार्ड टू गेन गुड रिजल्ट. अच्छा रिजल्ट पाने के लिए मैं हार्ड वर्क करूंगी. तो लास्ट में क्या आ रहा है? करूंगी. तो ऐसे सेंटेंसेस जिनके एंड में गा, गी, गे मतलब फ्यूचर की चीजें आती हैं कि मैं ये करूंगी, वो ये करेंगे, हम खाएंगे, हम जाएंगे, ऐसे वर्ड्स आते हैं, वो सिंपल फ्यूचर टेंस में होते हैं. ओके, नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग that why I have used will or shall here, will with society and shall with I. So there is a rule for this. Let's study that rule. See, will is used with the words such as you, they, he, she, it, etc. It means except I and we use will with all these words, and I and we is used with shall. But one thing you have to keep in mind here is that you can use will also with I or we when you have to tell that you are determined to do a thing. Let's come to see the examples now. Usage of simple future tense. See, the first is to express a promise. In this, the first example is I will surely help you. So, I am expressing a promise and it is my determination that I will surely help. So, in this, along with I have written will instead of shall because I am showing my determination here. The next is promise me that you will help me. So, here also to express a promise, we have to use will here. Now, voluntary actions. We can use simple future tense to show what we are willing to do. The first is I will make a cup of tea. So what is the subject here? I, and along with I what we have to write? Will or shall. So if it is a voluntary action and I am determined to do it, so I will use will here. And then the object. Verbs first form, make and then object. Similarly in the second sentence also, I will bring the things for you. So I will be the subject, will, and then verbs first form, that is bring, and after that the object. The next usage or the last usage we can say of simple future tense is that to express a prediction. Whenever we express a prediction, जब भी हमें कोई भविष्यवाणी करनी होती है तब हम उसके लिए भी simple future tense use करते हैं. The first is some astrologers predicted that 2020 will not be a good year, and of course it is not a good year because of this virus and all. So this is a prediction of the astrologists. So we will write it in simple future tense. Some astrologers predicted that 2020 subject will and then not be a good year, so verb and object. Then in the second sentence, Mr. Narendra Modi will be the next Prime Minister. What is the subject? Mr. Narendra Modi will, and then the verb's first form, that will be or uske baad object. So these are the three different uses, places where we can use simple future tense. I hope you have understood the simple tense of present, past and future. And if you have any doubt in this, then you are always free to write in the comment section and I will be happy to help you. Now the next video will be coming on the continuous tense, and then the third part I will be uploading for perfect and perfect continuous tense. So keep watching the channel, and if you really like the video, if you have understood, then please give it a thumbs up. Thank you, and your one like motivates us to work harder, motivates us to teach in a much better way. Thank you so much.